A very good morning to everyone. In our yesterday's topic, we read about confirmers, regulators, those who migrate, those who have suspended stages. Basically, in our very last session, we read about all these things. हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में हमेशा सिमिलर तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, रीजन बीइंग उनका हैबिटेट हमेशा उनके लिए सिमिलर तरीके से बिहेव नहीं करता. So due to these things, what happens is that they have to adapt to those habitats. उनको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. They can be morphological changes as well as they can be anatomical changes. तो उन्हीं चेंजेस को ध्यान रखते हुए टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिजम्स adaptations to various habitats. Other than being a regulator, confirmer या फिर माइग्रेट करना पड़े या सस्पेंडेड स्टेज शो करनी पड़े, हाइबरनेट होना पड़े, एस्टिवेट होना पड़े, डायापोज हो, इन सारी चीज़ों के अलावा व्हाट एल्स इज देयर कि ऑर्गेनिज्म कर सके ताकि वो चेंजिंग हैबिटेट से अडप्ट हो सके. तो दीज थिंग्स आर नोन एज एडेप्टेशंस. वी आर going to talk about adaptations today. Talking about the content layout, what we will study today is that what is adaptation, what are the important rules to explain adaptations or modification in organisms. There are few ecologists, few scientists who have given some rules. कुछ ऐसे साइंटिस्ट इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रूल्स दिए हैं एडेप्टेशंस के, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के, या फिर जो भी मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स में करनी पड़ती हैं उनको ध्यान रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स दिए हुए हैं कुछ इकोलॉजिस्ट ने. उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या रूल्स दिए और उनके पीछे क्या लॉजिक है. Then we will study about adaptations in plants. Then we will study about adaptations in animals. In this given slide, I have a picture for you where I have written that I have who shoots out black ink to escape predators. Second picture, second riddle is that I have who has a strong curved beak to crack upon large seeds or nuts. And the third riddle is that I have who has webbed feet for swimming. आप सभी बच्चों को आंसर देना है इन रिडल्स का. यू हैव टू टेल कि ये तीन ऑर्गेनिज्म कौन कौन है जो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ मैं कौन हूँ. पहला बोल रहा है कि मैं ब्लैक इंक शूट आउट करता हूँ ताकि मैं प्रेडेटर्स से बच सकूँ. सेकंड बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक है मेरी टू क्रैक ओपन लार्ज सीड्स एंड नट्स. थर्ड बोल रहा है आई हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग. सो विदाउट डूइंग गूगल, answer the questions in chat box. I have got one answer from Dhruv, octopus. It's very right. You may call it as squid or octopus. दोनों का ही ये feature होता है that they shoot out black ink to escape predators. This is a kind of adaptation or special feature they have. Very, very nice, Dhruv. Very good, Rinku. Very good, Mehak, Piyush. Everyone, Kashish, who has said that it's octopus, and Prateek has said squid. Yeah, I also said that it can be squid. Yes, and the third picture is kingfisher. Very nice. And then you have the second one. Yeah, dolphin. Dolphin for what? No, dolphin is not there for the first picture. आप लोग अपना आंसर नंबर मेंशन करेंगे कि आई एम गिविंग आंसर फॉर 1 और 2 और 3. ठीक है, इसको हम फिर फर्दर जैसे ही मैं चैट बॉक्स में देखूंगी तो आई विल आंसर. या आंसर 3 इज किंगफिशर. वेरी नाइस. इफ यू हैव आंसर फॉर द सेकंड वन देन गिव मी द आंसर, अदरवाइज फिर आपको टाइम दिया जाएगा उसके बारे में फाइंड आउट करना. देन लेट मी नो. ओके. पिक में पैरेट लग रहा है. या राइट, पिक में पैरेट लग रहा है, बट आई ऑल्सो थिंक सो दैट इट्स किंगफिशर. Okay, moving on to the next slide. Adaptation. What is adaptation?
Adaptation is an attribute of the organism, morphological, physiological, behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. This is a scientific definition for adaptation. मैंने आपको क्या बताया कि एडेप्टेशन कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आप लोग एडप्ट करते हो, उसको अपनाने की कोशिश करते हो, या आपके अंदर वो जेनेटिकली भी हो सकती है कि आ गई है, ताकि आप अपनी सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, ड्रास्टिकली जो चेंजेस हो रहे हैं या चेंजिंग हैबिटेट है, उसमें आप सरवाइव कर सको. Talking in very scientific terms, it is an attribute of the organism. Attribute मतलब characteristic है वो organism का. It is an attribute of the organism. मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है. हो सकता है आप अपने बिहेवियर में कुछ ऐसा शो करो कि वो आपके एडेप्टेशन है. हो सकता है आपके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनमें वो दिखे कि हाँ आपकी एक्सटर्नल कोई आपका कलर चेंज हो गया, मिमिक्री एंड ऑल दीज थिंग्स, कैमोफ्लाज, दीज थिंग्स ये करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स. तो कुछ कलर चेंजिंग हो गई, या आपने अपनी बॉडी को किसी तरीके से बाहर से एक्सटर्नली चेंज कर लिया जिससे आप पहचान ना पाओ जो प्रेडेटर जिस चीज को पहचानना चाह रहा है. या फिर हो सकता है कि आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए, फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल चेंजेस, इंटरनल बॉडी के अंदर चेंजेस हो गए, दैट enables the organism to survive and reproduce in its habitat. क्या है एडेप्टेशन? वो एट्रीब्यूट है ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में रिप्रोड्यूस करने के लिए और सरवाइव करने के लिए कैपेसिटी देता है. ओके, देन adaptations can be fixed and non-fixed. Mean to say they can be genetically fixed and other one are that are not genetically fixed. So those adaptations that are not genetically fixed, they are known as epigenetic adaptations. And those which have evolved over a long evolutionary time are genetic. Adaptations कैसी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं जो कि जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं है, जिनको एपिजेनेटिक बोला जाता है. और कौन सी हो सकती हैं? जो जेनेटिकली फिक्स्ड हैं एंड वो इवॉल्व हुई हैं ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम. तो दो तरह की आपकी एडेप्टेशंस हो गई. टू रिमेंबर द थिंग्स, फर्स्ट वन इज एपिजेनेटिक एंड सेकंड वन इज genetic. Then see this picture. You are given Leiopus. In the picture you have given Leiopus. What is this Leiopus? If you would have heard about Dingosa Leiopus, then citing about this thing, you have octopus and lion. मतलब एडेप्टेशन होता है वो एक तरीके का. कैसा होता है? इट इज हाफ लायन एंड हाफ ऑक्टोपस. कैसे? टेल टू स्वेट फ्लाइज, टेल आ जाती हैं टू स्वेट फ्लाइज. कलर चेंजिंग फर उसमें आ जाता है. अदर देन दैट, that Leiopus contains arms with suction cups to move on slippery rocks in water, and it has sharp teeth and furry mane. फरी मेन, आगे से जो उसका पोर्शन है देखो वो फरी है, तो दैट इज नोन एज लायोपस. उसके अंदर एक एडेप्टेशन है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ लायोपस. आई हैव नॉट फाउंड any actual literature regarding this, but this is one example that I found. इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लाया है कि maybe there is something like that, but there is no such literature supporting this thing. लेकिन हो सकता है कि इस तरह के कुछ फीचर्स रहते हों that are adaptive features. Then what next you have? The next one is adaptation in animals. Talking about first, that is kangaroo rat, that is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct. Check करना connect हो रहे हैं.
Kangaroo rat is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct. ये मैं पहला एग्जाम्पल. मूविंग ऑन टू द एडेप्टेशन इन एनिमल्स. ये मैंने आपको बताया कि एडेप्टेशन क्या होती हैं, कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं और किस किस तरह की होती हैं. मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल हो सकती हैं. वो हो सकता है कि जेनेटिकली फिक्स ना हो, और ये भी हो सकता है कि दे हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम और जेनेटिकली फिक्स्ड हो. अब हम कुछ एनिमल्स की बात करेंगे जिनमें एडेप्टेशंस होती हैं. तो if talking about this thing, then we have kangaroo rat that is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct, and it has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory products. कंगारू रैट एक एनिमल होता है जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में पाया जाता है. उसका हैबिटेट क्या है? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स. उसको एडप्ट करना पड़ता है, और उसकी एडप्टेशन ये होती है कि एक तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी, जिसमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, एंड सेकेंडली उसके अंदर एबिलिटी होती है टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन so that minimal volume of water is used to remove excretory product. अगर उसका concentrated urine होगा तो सीधी सी बात है, आपने एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि what are the effects of diluted urine and concentrated urine. तो अगर diluted urine it means कि उसको बहुत ज्यादा वाटर यूज करना पड़ रहा है, उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है. लेकिन अगर उसमें एबिलिटी होगी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन, तो मिनिमल वाटर का यूज होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए. वाटर लॉस ज्यादा नहीं होगा बॉडी में से बाहर की तरफ. दिस इज द एडेप्टेशन इन कंगारू रैट. In this table given on right hand side, I have mentioned habitat of adaptation is North American desert, animal is kangaroo rat, एंड रीजन फॉर एडेप्टेशन, क्यों उसको ये एडेप्टेशन करनी पड़ रही है? रीजन है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर. वहां पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर नहीं होता है. इधर इट इज सो लेस और देयर इज एन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वाटर. कहाँ? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में. डेजर्ट्स में यू ऑलरेडी नो देयर इज अ वेरी ड्राई क्लाइमेट एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और कंगारू रैट रहते हैं नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में. तो वहां पे एब्सेंस होती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर की, इसीलिए उसको एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है. क्या एडेप्टेशन चाहिए होती है? दैट आई हैव अर्लियर मेंशन्ड, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन एंड कंसंट्रेटेड यूरिन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैमल्स. कोई भी मैमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो कहाँ रहते हैं, किसके लिए एडेप्टेशन चाहिए उनको? कोल्डर क्लाइमेट्स में. कोल्डर क्लाइमेट्स में रहने वाले मैमल्स. वहां पे रीजन क्या है, क्यों एडेप्टेशन चाहिए? क्योंकि कोल्डर क्लाइमेट है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, बहुत लो टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कोल्ड विंटर्स आर देयर. तो जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं, दे जनरली हैव शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस. आप अगर देखेंगे, समझ पाएंगे, तो एक जेनेटिक एडेप्टेशन है. उनके अंदर जेनेटिक एडेप्टेशन आ गई है कि दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स. बिल्कुल क्या बोलते हैं, लिम्स कैन बी हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स. यू कैन से कि हाथ और पांव उनके छोटे होते हैं और ईयर्स भी उनके शॉर्टर होते हैं टू मिनिमाइज हीट लॉस. क्योंकि अगर बॉडी से हीट लॉस ज्यादा होने लगा तो वो शिवर करने लगेंगे लो टेम्परेचर में. इसीलिए उस ज्यादा हीट लॉस को बचाना है, अंदर गर्मी रहनी चाहिए शरीर में थोड़ी सी. दे शुड बी फीलिंग हॉट और दे शुड बी फीलिंग दे शुड बी हैविंग अ फीलिंग ऑफ हीट इनसाइड देयर बॉडी. तो इसीलिए दे मिनिमाइज हीट लॉस बाय हैविंग शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स. देन you have aquatic mammals. Aquatic mammals such as seals, जो कहाँ मिलती हैं? पोलर सीज में. बेटा पोलर सीज के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये होते हैं कि वहां पे वार्म समर्स नहीं होते और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. पोल्स हैं, वहीं पे पोलर सीज हैं, तो ऑब्वियस है कि वहां पे टेम्परेचर कम रहता है, ठंड ज्यादा होती है. तो वहां के जो एनिमल्स हैं उनको क्या अडॉप्ट करना पड़ता है
They have a thick layer of फैट की थिक लेयर उनमें होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं, बिलो देयर स्किन, जो किस तरह से काम करती है? इट एक्ट एज इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट। इंसुलेटर की तरह वो काम करती है एंड इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यू हैव एडेप्टेशन इन एनिमल्स, कॉन्टिन्यूशन स्लाइड। ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, अब हम थोड़ी सी अपनी बात करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने आपको पहले पुराने सेशंस, पुरानी वीडियोस में भी दिया था। व्हाट इज दिस? The body compensates low oxygen availability at high altitudes by increasing red blood cell production, decreasing the binding affinity of hemoglobin and by increasing breathing rate. जब आप हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे जाते हो, जैसे कि रोहतांग, आई हैव बीन टू रोहतांग, आप में से भी कुछ ऐसे होंगे हु हैव बीन टू रोहतांग, मनाली के पास है ये। इट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पास, सॉरी, इट इज द हाईएस्ट पास। 3500 मीटर से ज्यादा का इसका एल्टीट्यूड है। तो इतनी हाइट पे व्हाट हैपेंस इज लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो जाती है। रीजन बीइंग, क्या रीजन है एडेप्टेशन का? क्यों हो जाती है वहां पे लो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी? बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा अगर हाइट ज्यादा होगी तो। यू नो अबाउट अ फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू रो एच जी, वहां से सब निकालो उसको डिराइव वगैरह करके। यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस इन फिजिक्स, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो कैसे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और हाइट पे जाने से। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट? तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर एंड ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, जिसकी वजह से आल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। आल्टीट्यूड सिकनेस से क्या होता है, आप में से बहुत से लोग होंगे या छोटे बच्चे, स्पेशली आपके छोटे भाई बहन, देखना आप, क्या होता है कि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो यू फील नोशिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगती है, फटीग होने लगता है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करते हो, हार्ट पाल्पिटेशंस आर देयर। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये क्यों हो रही हैं? ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल। इसको कंपनसेट करने के लिए आपके अंदर क्या एडेप्टेशन हो जाती है उस टाइम पे? by you increase red blood cell production, not your body increases red blood cell production, decreasing the binding affinity of hemoglobin and by increasing breathing rate। आपका breathing rate बढ़ जाता है, hemoglobin की binding affinity कम हो जाती है and red blood cell की production increase हो जाती है। So due to this thing you adapt to that environment जहाँ पे high altitude places है। नेक्स्ट इज आर्के बैक्टीरिया। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले मेंशन किया था। अगर आपको ध्यान है तो लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने मे बी लास्ट ही क्लास में हमने बात की थी हॉट स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की, जहां मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत हॉट स्प्रिंग्स में और डीप सी के जो हाइड्रोथर्मल, बहुत हाई टेम्परेचर वाले वेंट्स होते हैं, वहां पे रहते हैं और एकदम मजे से रहते हैं। दे अडेप्ट टू दैट एनवायरमेंट, दे आर जेनेटिकली अडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट। रीजन बीइंग, कैसे रह लेते हैं वो इतना 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के टेम्परेचर के एनवायरमेंट में? दे डू सो by presence of branch chain lipids known as phytonyl side chains. This is a very, very important question. Almost every time this question comes in NEET exam as well as higher competitive exams कि आर्के बैक्टीरिया में ऐसा क्या फीचर होता है जिसकी वजह से वो इतने हॉट स्प्रिंग्स में और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के हैबिटेट में भी सरवाइव कर जाता है। What is that special feature? और क्यों है? आप सोचो ना कि आर्के बैक्टीरिया कब से रह रहा है ये। अगर आपने आपकी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी है, then eubacterias and archaebacterias are divided separately। तो देखो कितने टाइम से आर्के बैक्टीरिया आर अलाइव और वो लोग अडप्ट कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन है,
रीजन क्या है कि वो रह पा रहे हैं, जो उनको इतना ज्यादा सीवियर एनवायरनमेंट मिल रहा है, सीवियर हैबिटेट मिल रहा है, उसमें भी वो लोग एडप्ट कर पा रहे हैं। बट वो एडेप्टेशन क्या है? दैट एडेप्टेशन इज प्रेजेंस ऑफ, क्या चीज प्रेजेंट होती है उनमें? ब्रांच्ड चेन लिपिड्स that are known as phytonyl side chains. This is a chemistry. Phytonyl side chains are present, branched chain lipids are present, जो उनकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। और अगर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी, then they will not melt in such high temperatures. Their body will adapt in such high temperature habitats. Next you have Antarctic fish. Antarctic fishes क्या है? वेरी लो टेम्परेचर है, एंटार्क्टिक है तो कोल्डर रीजन्स हैं, तो उनके अंदर क्या एडेप्टेशन है? एंटी फ्रीज सोल्यूट्स प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स बाय व्हिच दे कैन मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग। उनकी बॉडी फ्लूइड्स में एंटी फ्रीजिंग सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो मैनेज कर लेते हैं, अपने बॉडी फ्लूइड को फ्रीज होने से बचा लेते हैं। दिस इज द एडेप्टेशन इन एंटार्क्टिक फिशेस. These are few important adaptations from animals that I have mentioned here. इसके अलावा अगर जनरली याद रखने की बात है तो ऐसे बहुत सारे मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स या फिशेस भी होती हैं जो बहुत गहराई के ओशियंस में सरवाइव कर लेते हैं, जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 गुना ज्यादा हो सकता है, उसको क्रशिंग प्रेशर भी बोलते हैं। तो वहां पे मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स या फिशेस की एडेप्टेशन हो जाती है। अदर देन दैट ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ बरोइंग इनटू द सोयल। वो सॉयल में बरो करके मतलब बरो बना के दे हाइड इन द सोयल और ग्राउंड हीट से वो एस्केप कर जाते हैं। अर्थवॉर्म को तो आपने देखा ही होगा। उसके अलावा डेजर्ट लिजर्ड्स होती हैं, वो डेजर्ट में प्रेजेंट होती हैं और इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी वो कैसे सरवाइव कर जाती हैं? उनको कंफर्ट जोन मिल जाता है ड्यू टू द एडेप्टेशंस। ठीक है, क्योंकि उनमें जो फिजियोलॉजिकल एबिलिटी होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर में कॉप अप करने की, वो उनके अंदर नहीं होती, लेकिन उनका जो बिहेवियर मीन है वो ऐसा बिहेवियर शो करती हैं जिसकी वजह से उस टेम्परेचर में भी वो मैनेज कर जाती हैं। बट व्हाट डज इट डू? वो सन में बास्किंग करती हैं, आराम से मजे लेती हैं धूप में और हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जब उनका बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन से नीचे चला जाता है तो। लेकिन जब एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो दोबारा शेड में चली जाती हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जो आप और याद रख सकते हैं, लेकिन अदर देन दैट जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव मेंशन्ड ऑल दोज एग्जाम्पल्स इन स्लाइड। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू शुड रिमेंबर, अगर एडेप्टेशन इन एनिमल आ जाए तो इतने सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे अच्छे से। और अगर आपको एमसीक्यू के बारे में पूछा जाएगा तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, आर्के बैक्टीरिया वाला आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, इट इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। Then we have adaptations in animals. See the picture. This is a picture of Opuntia. This is a kind of desert plant. Spiny leaves इसमें होते हैं. So डेजर्ट प्लांट्स की बात हो रही है एडेप्टेशन इन प्लांट्स में। द फर्स्ट पॉइंट इज डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स ने खुद को कैसे अडॉप्ट किया है? थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेसेस एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डिप पीट्स संकन टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। क्या कह रहा है ये? कि उनकी जो लीफ सरफेस है उस पे क्यूटिकुलर लाइनिंग्स या क्यूटिकल की कवरिंग होती है। थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट एंड वो जो उनका स्टोमेटा होता है वो डीप पिट्स में प्रेजेंट होता है। दे हैव संकन स्टोमेटा टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। Then they have a special photosynthetic pathway that is known as CAM that enables their stomata to remain closed during daytime. क्या होता है अगर स्टोमेटा दिन के टाइम पे बंद रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ऐसा करने के लिए उनमें क्या होता है? एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है। Those people who have studied plant physiology in class +1, आपने पढ़ा होगा कैम पाथवे के बारे में। इसको और क्या बोलते हैं? क्रिसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है।
किस लिए यूज होता है? कार्बन फिक्सेशन के लिए यूज होता है, ताकि जो एरिड कंडीशंस में, ड्रायर कंडीशंस में जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये इवोल्यूशन, ये एडेप्टेशन हो जाए कि कार्बन फिक्सेशन का पाथवे वो एज कैम पाथवे यूज कर सके, ताकि उनके अंदर जो रात के टाइम पे है सिर्फ गैसेस एक्सचेंज हो सके और दिन के टाइम पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो सके. दिस इज द स्पेशल एडेप्टेशन पाथवे फॉर द प्लांट्स दैट ग्रो इन एरिड जोन, जो ड्राई जोन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये काम पाथवे है. आपने बिल्कुल प्लांट फिजियोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. लिटिल इसके बारे में मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया. तो ये कैम पाथवे, क्रोसलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, फीचर होता है डेजर्ट प्लांट्स का, दैट enables their stomata to remain closed during daytime. देन और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है उनके लीफ सरफेसेस पे, एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डिप पिट्स. संकन स्टोमेटा उनमें प्रेजेंट होते हैं ताकि वो वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकें थ्रू ट्रांसपिरेशन. एंड यस सुहानी, यू आर वेरी मच राइट. Oldest bacteria are known as archaebacteria. Yes, you are very much right. And yeah, air becomes less dense at high altitudes. I am getting these comments, and these comments are very much right. Yes, Dhruv, vomiting occurs, nausea हो जाता है. जब हमने बात की थी किसकी, ये फर्स्ट पॉइंट ह्यूमंस के बारे में, जब हम बात कर रहे थे हाई एल्टीट्यूड पे, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वी हैव गॉट अ कमेंट फ्रॉम सुहानी दैट oldest bacterias are archaebacterias. Yes, of course they are oldest bacterias, और वो सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी अच्छी एडेप्टेशंस हैं. एंड then we have again a next comment of Krebs cycle and Cam cycle. बेटा Krebs cycle and Cam cycle दोनों अलग हैं. Read about these things. Krebs cycle is TCA cycle, क्या है, क्या बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, while that Cam is Cruciferous acid metabolism. Fine. Yeah, C3 cycle is Cam cycle, right. So, हम कहाँ थे? हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट वी हैव सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनशिया हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स. मैंने आपको बताया, इस पिक्चर में भी देखो, उनमें लीव्स नहीं होते, उनके जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में, कांटों में कन्वर्टेड हैं. And the photosynthetic function is taken over by flattened stems. और जो flattened fleshy stems उनकी हैं, उन्होंने उनका photosynthetic function take over कर लिया है. These are the adaptations present in desert plants. Okay, now what we have 4 important rules. My slide was clapping for the scientists or ecologists who have given these rules. बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स उन्होंने दिए जो कि आपको याद रखने हैं. एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडेप्टेशन में, दैट इज एलन्स रूल. एलन्स रूल क्या कहता है कि कोल्डर क्लाइमेट में होने वाले मैमल्स में शॉर्टर ईयर्स, छोटे ईयर्स और लिम्स होते हैं. एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं इनको, शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, ताकि वो अपनी बॉडी के हीट लॉस को मिनिमाइज कर सकें. बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, हीट लॉस अगर बॉडी से अंदर ज्यादा हो गया तो कैसे रहोगे? शिवरिंग चलती रहेगी, ठंड लगेगी, जुकाम हो जाएगा, बहुत बहुत ऐसी सिचुएशंस हो जाएंगी कि आप अडप्ट नहीं कर पाओगे उसमें. तो उस वजह से उस हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप, जो लोग कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, उनके शॉर्टर ईयर्स और लिम्स होते हैं टू मिनिमाइज हीट लॉस. देन द सेकेंड रूल इज बर्गमैन्स रूल. बर्गमैन ने क्या कहा? warm blooded animals have larger body size in colder climate than hotter areas. बर्गमैन ने ये बोल दिया कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें लार्जर बॉडी साइज होता है. किनमें? जो कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू हॉटर एरियाज में रहने वाले वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, वार्म ब्लडेड ऑलरेडी हैं, हॉटर में जरूरत नहीं है उनको लार्जर बॉडी साइज की, तो उन्होंने कोल्डर क्लाइमेट में अडेप्ट कर लिया कि हमारा लार्जर बॉडी साइज हमको चाहिए ताकि हम कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट कर सकें.
इनवर्स रिलेशन इज शेयर्ड, वार्म ब्लडेड है लेकिन लार्ज बॉडी साइज होता है क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है. देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन वार्म ब्लड एंड कोल्डर क्लाइमेट. तो उसमें अडेप्ट करने के लिए दे हैव लार्जर बॉडी साइज. नाउ you have, yes, I am getting a comment from Yogita that in CAM cycles stomata are closed during daytime. Yes, that is what I said. यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि their stomata remain closed during daytime. Yes, Yogita, you are very right. दिन में अगर स्टोमेटा नहीं खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, तो वाटर लॉस कम होगा. तो बर्गमैन रूल पे हम थे. बर्गमैन रूल हमने समझ लिया, एलेंस रूल हमने समझ लिया. कमिंग अप टू द नेक्स्ट, आप एक चीज जरूर इसमें देखना, एलेंस रूल की जो बात हो रही है वो क्या बोल रहा है कि हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टर ईयर और लिम्स चाहिए कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले लोगों को. बर्गमैन ने क्या बोल दिया कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले, उनका लार्ज बॉडी साइज होना चाहिए एज कंपेयर टू हॉटर एरियाज. वार्म ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं? बर्ड्स और मैमल्स. बर्ड्स और मैमल्स. तो उसने उन्हीं की बात करी. लार्जर बॉडी साइज होगा तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो वहां उस रिस्पेक्ट में बात हो रही है लार्जर बॉडी साइज की. तो दे आर सेइंग द रिलेटेड थिंग्स. ठीक है. देन वी हैव रेंच रूल. रेंच रूल क्या कहता है कि इन कोल्डर क्लाइमेट्स बर्ड्स पोजेस नैरो एंड एक्यूमिनेट विंग्स एज कंपेयर टू ब्रॉडर विंग्स ऑफ बर्ड्स फाउंड. ऑफ कोर्स उसने भी यही बोल दिया कि जो ठंडी जगह है वहां पे बर्ड्स में नैरो और एक्यूमिनेट मतलब शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज विंग्स होंगे एज कंपेयर टू ब्रॉडर विंग्स ऑफ दोज बर्ड्स जो कि वार्मर एरियाज में मिलती हैं. देन द नेक्स्ट वन इज जॉर्डन्स रूल. जॉर्डन रूल ने क्या बोला कि जैसे ही टेम्परेचर को कम करोगे, अगर टेम्परेचर को आपने कम कर दिया, एक्वेटिक टेम्परेचर की स्पेशली बात हो रही है, तो सम फिशेस पोजेस लार्जर साइज विद लार्ज नंबर ऑफ वर्टेब्रे. अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड हैबिटेट दे दिया, तो ऐसी कुछ फिशेस होती हैं दैट पोजेस लार्ज साइज विद लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रे. उनका लार्ज साइज होगा विद लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्री अगर कम टेम्परेचर में फिशेस प्रेजेंट है. तो दिस इज जॉर्डन्स रूल. So you get it. 4 important rules are Allen's rule, Bergman's rule, Wrench's rule, Jordan's rule. Subjective point of view से अगर बात करें तो what they can ask is कि Allen's rule क्या है, Bergman क्या है, Wrench क्या है, Jordan rule क्या है. लेकिन अगर उसके अपोजिट नीट एंड एंट्रेंसेस की बात करें तो आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, या फिर मैच द फॉलोइंग दे देंगे कि ये स्टेटमेंट किसने दी, ये किसने दी, ये किसने दी, या फिर वो नाम लेके साइंटिस्ट का आपसे पूछ लेंगे कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, उनको सोच समझ के आपको याद रखना है. क्रैमिंग करने की जरूरत आपको वैसे ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसके पीछे का बेसिक समझ गए हैं, तो जो कि हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्रैम नहीं करना है, चीजों को समझ के आपको याद रखना है. आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या दिया था. ऐसा नहीं कि आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएं कि शॉर्टर था कि लॉन्गर था, कोल्ड था कि वार्म था. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ओके. नाउ adaptations in plants और hydrophytes for water abundance. हाइड्रोफाइट्स बेटा वो प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो इन वाटर. बहुत ज्यादा वाटरी रीजन्स जो होते हैं वहां पे ग्रो करने वाले प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स होते हैं. नियर द स्कूल, एसडी स्कूल नरवाना, वहां पे एक देयर इज अ विलेज जिसके पास एक एरिया है, वहां पे बहुत बड़ा सा पॉन्ड है, वहां पे देयर आर सम हाइड्रोफाइट प्लांट्स. इफ यू वुड हैव मैनेज टू गो देयर, या आगे मैनेज कर सकें, और इफ यू कैन टॉक टू द स्कूल अथॉरिटीज, यू विल गेट टू नो कि कहाँ है, एंड यू विल बी वॉचिंग द हाइड्रोफाइट्स. अदर देन दैट, व्हेन यू विल बी कमिंग अप इन योर ग्रेजुएशन, when you will be going to colleges, तो वहां पे you will be having experiments. हाइड्रोफाइट्स एंड ऑल पे एक्सपेरिमेंट्स आप लोग करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में आपको मिलेंगे. आई हैव डन एक्सपेरिमेंट इन माय ग्रेजुएशन, हाइड्रिला लीफ पे आई हैव डन एक्सपेरिमेंट. तो वहां से यू विल गेट टू नो कि वो कैसे दिखते हैं और कैसे होते हैं. आइकोर्निया लीफ पे भी आई हैव ऑल्सो डन एन एक्सपेरिमेंट. तो
वेलिसनेरिया, आई हैव ऑल्सो सीन वेलिसनेरिया। तो बड़े सुंदर प्लांट्स होते हैं एंड दे आर हाइड्रोफाइट्स, बहुत ज्यादा जहाँ वाटर वाला पोर्शन होता है वहां पे ग्रो करते हैं। लेकिन उस पोर्शन में ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये तो इनको नेचर ने दे दिया कि आपको तो ज्यादा वाटर अबेंडेंस वाले एरिया में ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन क्या नॉर्मली ग्रो कर लेंगे और प्लांट्स की तरह? अगर मैं रोज को रख दूं बहुत सारे पानी में, वो तो नहीं ग्रो कर सकता। सिमिलरली लोटस कीचड़ में होता है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और प्लांट लगा दूं, सनफ्लावर लगा दूं बिना सन रेज के, तो ग्रो कर लेगा? नहीं कर पाएगा। दे नीड सम एडेप्टेशन, उस हैबिटेट में खुद को एडेप्ट करने के लिए उनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। क्या हैं वो कैरेक्टर्स? लेट्स सी। हाइड्रोफाइट प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, दे आर ईदर कंप्लीटली एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। या तो कंप्लीटली एब्सेंट रूट होंगी या तो फिर पुअरली डेवलप्ड होंगी। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मैंने बताया है कि उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, जो आपको बाहर से दिखती हैं, जो उनके एक्सटर्नल फीचर हैं, वो क्या होते हैं। ऑन राइट हैंड साइड आई हैव शोन यू कि उनके अंदर एनाटॉमिकल एडेप्टेशन क्या होती हैं, इंटरनल फीचर्स उनके कैसे होते हैं। तो अगर हम रूट की बात करें तो रूट आर इधर कंप्लीटली एब्सेंट, फॉर एग्जांपल साल्विनिया, वॉल्फिया, केराटोफाइलम, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं। या फिर पुअरली डेवलप्ड रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हाइड्रिला में। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट एज बैलेंसिंग ऑर्गन। रूट्स तो इनमें नहीं है, क्यों और लेकिन उसकी जगह क्या है, रूट पॉकेट्स प्रेजेंट हैं जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करती हैं, इंस्टेड ऑफ रूट कैप। रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोफाइट्स में ऐसी क्या एडेप्टेशन है कि उनमें क्या चीज होती है रेदर देन रूट कैप। रूट कैप की जगह कौन सी चीज प्रेजेंट होती है? तो आप क्या मार्क करेंगे? रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं। किसमें? एजोला, आइकोर्निया, लेमना, पिस्टिया, ये कुछ प्लांट्स के नाम हैं जिनमें रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं इंस्टेड ऑफ रूट कैप। देन द नेक्स्ट वन यू हैव इज स्टेम। स्टेम की अगर हम बात करें, देन यू हैव लॉन्ग, स्लेंडर, स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स, फॉर एग्जाम्पल पोटामोगैटॉन एंड हाइड्रिला। हाइड्रिला और पोटामोगैटॉन में क्या होता है, स्टेम कैसी होती है? लॉन्ग, सिलेंडर, स्पॉन्जी और फ्लेक्सिबल स्टेम होती हैं। उसके बाद लीव्स पे आ गए। लीव्स की बात करेंगे तो आइकोर्निया जो प्लांट है उसमें पिटियोल या तो स्वोलन होता है या तो फिर स्पॉन्जी होता है। और कुछ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट जैसे कि वेलिसनेरिया, उनमें थिन लॉन्ग रिबन शेप्ड लीव्स होते हैं। आप इसको विजुअलाइज तब कर पाएंगे जब आप इनकी एक बार फोटो देखेंगे। इन प्लांट्स की जरूर आप लोग फोटोज रेफर करना, गूगल दीज प्लांट्स एंड सी देयर पिक्चर्स, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और आपको समझ में आएगा कि मॉर्फोलॉजिकल जो एडेप्टेशन है वो उनकी कैसे उनके अंदर प्रेजेंट है और कैसे आपको दिखाई दे रही है। Then on the right hand side we have anatomical adaptation, presence of large ear space in erenchyma, erenchyma बहुत ज्यादा present होगा। Then you have mechanical tissue that is sclerenchyma, वो या तो poorly developed होगा या तो absent होगा। जो vascular tissue है especially xylem, वो poorly developed होगा। And cuticle is absent, cuticle होगा ही नहीं, absent होगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो जाएगा ना क्यूटिकल की वजह से तो लीफ सरफेस पे, तो इसीलिए क्यूटिकल है ही नहीं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर हाइड्रिला, वोल्फिया, ट्रैपा, पोलिगोनम। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट यू हैव इज एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। दिस इज रिटन रॉन्ग, ऊपर जो हेडिंग है वो हाइड्रोफाइट्स के लिए नहीं है, जीरोफाइट्स के लिए है। इसको प्लीज आप लोग करेक्ट करें। एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑब्लिक हाइड्रोफाइट्स, मैंने गलती से हाइड्रोफाइट्स लिख दिया, इट इज नॉट हाइड्रोफाइट्स, इट इज जीरोफाइट्स। वो प्लांट्स जो कि डेफिसिट ऑफ वाटर वाले प्लेसेस में, जहां पे पानी बहुत कम होता है, स्कार्सिटी होती है, कमी होती है पानी की, वहां जो ग्रो करते हैं, दे आर जीरोफाइट्स। ड्राई हैबिटेट्स में दे ग्रो। वाटर स्कैर्सिटी के रीजन्स में उनमें क्या होता है, रूट्स वेल डेवल्ड होती हैं, अच्छे से डेवल्ड होंगी रूट्स, क्यों? ताकि पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें जितना भी उनको मिले। ऑन द अदर हैंड जब हमने बात की थी हाइड्रोफाइट की, तो वहां पे रूट्स या तो कंप्लीटली एब्सेंट थी या तो पुअरली डेवल्ड थी, क्योंकि बेटा उनको ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, वाटर अबेंडेंस है ऑलरेडी बहुत ज्यादा।
लेकिन वाटर स्कार्सिटी में दे नीड गुड वेल डेवलप्ड रूट्स, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड और एक्सटेंसिवली स्प्रेड, अच्छे से फैली हुई रूट्स चाहिए, अच्छे से डेवलप्ड रूट्स चाहिए, ताकि अच्छे से जितना भी पानी अवेलेबल है उसको एब्जॉर्ब कर सकें, अच्छे से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकें। देन रूट्स आर डीप इन फिराटोफाइट्स, फिराटोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर रूट्स डीप होती हैं। देन यू हैव स्टेम, स्टेम हार्ड होगी, वुडी होगी, थिक बार्क के साथ। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होती है, जैसे कि ओपनशिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। इट इज नोन एज फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड किसकी बात कर रही हूँ, प्लांट की बात नहीं कर रही फाइलोक्लेड। अगर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास +1 में पढ़ा है तो वहां पे यू हैव क्लेडोड्स, यू हैव फाइलोड्स, यू हैव फाइलोक्लेड्स, यू हैव फाइलोक्लेडोड्स, तो उसी की बात हो रही है। स्टेम की वो मॉडिफिकेशन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड हो, when the stem is modified into leaf like structure, that modification is known as phyloclade. ओके, स्टेम की मॉडिफिकेशन का नाम है फाइलोक्लेड। कौन सी मॉडिफिकेशन, जिसमें आपकी स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल ओपनशिया, ठीक है, ओपनशिया हमने देखा था, अभी दोबारा देखेंगे याद रखने के लिए। दिस इज ओपनशिया। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रही है, इससे थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें, ठीक है। क्या बताया मैंने कि ओपनशिया में स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देन लीव्स पे आ जाते हैं। लीव्स कैसे हैं, जो जीरोफाइट्स के लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर कैडुकस लीव्स। कोई बताएगा मुझे, कैन समवन कमेंट डाउन व्हाट आर कैडुकस लीव्स? Is there anyone who can comment down and know about caducous leaves? मैं तब तक आगे बढ़ती हूँ। caducous leaves, या मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली अगर हम कैडिकस की बात करें तो वो जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट जो होती है, या एग्जैक्टली, ध्रुव हैज रिटन एंड कमेंटेड डाउन, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, फॉल ऑफ कर जाते हैं। कैडिकस का मतलब है अर्ली लाइफ जो होगी ना प्लांट की, या लीव जब आएगा तो बहुत जल्दी इट शेड ऑफ। यस प्रतीक, ड्रॉपिंग ऑफ और शेडिंग एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज कैडिक्वस। I have got 2 comments from Dhruv and Pratik and both are very much right. Excellent presentation. Caducous leaves are the leaves that drop off or shed off or fall off at very early stage of development of the leaf or the plant life. Easily, बहुत आराम से डीअटैच हो जाते हैं वो प्लांट से। तो जो जीरोफाइट के लीव्स हैं, they are generally caducous. समझ रहे हो पॉइंट क्या है कैडिकस लीव्स का? अगर लीफ लंबे टाइम तक रहेंगे तो उनको ट्रांसपिरेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोमेटा भी प्रेजेंट है बेटा लीव्स में। तो इसीलिए ऐसे लीव्स प्रेजेंट होते हैं जो जरूरत के हिसाब से जल्दी शेड ऑफ कर सके और थोड़ा शॉर्ट लाइफ स्पैन रखते हों और आराम से डीअटैच हो सके। देन यू हैव एनाटॉमिकल फीचर। व्हाट आर द एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस? थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगा ताकि बेटर रिटेंशन रहे लीफ और स्टेम एपिडर्मिस पे, जबकि ऑन द अदर हैंड हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ वैक्सी लेयर, वही क्यूटिकल जैसा ही काम करेगा वैक्सी लेयर भी, लीव्स की एपिडर्मिस पे वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी, अगेन वही वाटर रिटेंशन हो सके। देन यू हैव स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस्ड होती है एंड संकन स्टोमेटा, डीप जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिकल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू बहुत अच्छे से डेवलप चाहिए ताकि बढ़िया बढ़िया वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके और उसका प्लांट्स में इधर उधर ट्रांसफर हो सके सारा। तो मैकेनिकल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू अच्छे होने चाहिए। एंड एपिडर्मिस में भी मल्टीपल एपिडर्मिस प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं ओपनशिया, एलोए। एलोए तो आप अपने घर में भी लगाते हैं, बहुत आराम से उग जाता है, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगेव इज देयर, कैसुअरीना, कैलोट्रोपिस। Then you have adaptations in plants. Again यहाँ पे गलत लिखा है, this is not hydrophyte, this is halophyte. ये मैंने चीजें जब कॉपी की तो बाय चांस, मतलब मैंने जो फर्स्ट स्लाइड थी उससे सेकंड और थर्ड का हेडिंग बनाया
तो बाय मिस्टेक वो हाइड्रोफाइट ही लिखा आ रहा है। ये जो सेकंड स्लाइड है यहाँ मैंने आपको बताया है, जो ऊपर टाइटल है स्लाइड का, दैट इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑब्लिक जीरोफाइट्स फॉर वाटर स्कैरसिटी, एंड दिस वन इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑब्लिक हेलोफाइट्स फॉर सेलिनिटी। हेलोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स दैट लव ग्रोइंग इन साल्ट, सेलाइन सोयल में, साल्ट जो कंडीशंस होती हैं सोयल की, साल्टी कंडीशन, वहां जो ग्रो करना पसंद करते हैं, हेलोफाइट्स। रूट कैसी होती हैं? मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मैनग्रूव्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स। सैलिनिटी की कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। न्यूमेटोफोर्स उनको बोलते हैं, विच आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब उनका रुझान ग्राउंड की तरफ नहीं होगा, उससे अपोजिट होगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। These are modified trap roots which have pneumatothords for gaseous exchange. Modified tap root, रूट का मॉडिफिकेशन है न्यूमेटोफोर, किस लिए? गैस एक्सचेंज के लिए यूज होता है, जो ये कहाँ प्रेजेंट है? मैनग्रोव्स में। अच्छा गैसियस एक्सचेंज उनको चाहिएगा क्योंकि सैलिनिटी में ग्रो कर रहे हैं। Then you have presence of thick cuticle and stem. Upper and lower leaf epidermis is thickly cuticularized. Stem hypodermis is multi-layered and thick-walled. Pericycle is sclerenchymatous 3 और 4 layered and vascular tissue is well-developed. उसके नीचे मैंने आपको बताया है कि हेलोफाइट्स कंटेन succulent and fleshy stem. Succulent और fleshy stem present होती है. Evergreen thin leathery leaves present होते हैं. Example of such plants, example of helophytes are Spartina alterniflora, that is smooth cordgrass, and Atriplex. And now what we have? We have World Menstrual Hygiene Day today. This is the day that a boy as well as girl both should take care of. Why boys? Because you have your sisters and mothers in your home. You might be having girl best friends. There are number of women who are playing a very important role in your life. टुडे वी हैव वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। आज ही के दिन सेलिब्रेशन या आज ही के दिन मनाना या आज ही के दिन इसके बारे में जिक्र करना इम्पोर्टेंट नहीं है। When a girl start bleeding, when a girl starts having menstrual cycles, उसी दिन से it is the duty and responsibility of each and everyone to take care of those things. We need to step up and action and investment in menstrual health and hygiene now. And other than that, टैबू कुछ लोग कंसिडर करते हैं, सो प्रॉब्लम उसको कंसिडर करते हैं, बट मेंस्ट्रुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। आज के टाइम में तो थिंग्स हैव चेंज्ड, टाइम हैज चेंज्ड, वी आर इन अ वेरी एडवांस्ड स्फेयर. We can go to the markets, we can go to the supermarkets, we have online stores जहाँ से हम अपनी पसंद से we can get the sanitary napkins. Because for girls it is a special thing to know कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि you should use cottony pads, you should not use the sanitary napkins that are having a very high chemical composition of chemical constituents, because they impose a very bad effect on your health. There are studies that show कि उन chemicals से or using those sanitary napkins for a very long period of time, it can create a trouble for your parts like uterus and all. It might create cancers, it might create skin problems, etc. But आज के time में तो people are literate and they are more advanced. Although there are some situations जहाँ पे अभी भी critical चीजें हैं, इसको taboo माना जाता है, poor practice consider किया जाता है. There आप लोगों ने सबने एक मूवी देखी होगी, that is Padman, that is totally featured on this thing. Other than that आप सभी educated हैं, at least those who are watching the video and the session. So आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में all the girls or women present या जो भी आपकी लाइफ में who are important people, किसी को इस तरह की जरूरत है तो आप उनके साथ रहें, be a boy or be a girl, and आप menstrual hygiene का ध्यान रखें. You should use sanitary napkins but try to employ the cottony pads or cottony sanitary napkins such as Plush and Nova. Okay, and this is 28th May.
when we have World Menstrual Hygiene Day, where you need to step up action and investment in menstrual health and hygiene now, because this is a very important phase in the lives of women as well as girls. And keep watching the things. Next topic we will be studying is population attributes and growth models, where we will be talking about death rate, birth rate, exponential growth, logistic growth curve, etc. etc. Okay. And thank you. Keep liking, sharing, and subscribing the channel, and especially keep learning and keep watching the sessions. Thanks a lot. We are done for the day.